welcome. Thanks very much for tuning in to NDTV 24/7 to this special edition of the news. I'm Padmaja Joshi, and on every story that matters, every election issue, the buck stops here. Let's talk about a hypocrisy of gigantic proportions. All through the day today, the Congress, the RJD, other members of the Mahagathbandhan were in full attack mode. The reason for that? Lallan Singh, Union Minister and senior leader of the JDU, and Deputy Chief Minister in Bihar, Samrat Chaudhary, came out to campaign for Anand Singh, the JDU candidate in Mokama, who currently is in jail. He is in judicial custody on charges of murder. He is one of the accused in the murder of Dular Chand Yadav, a supporter of Jan Swaraj Party, but somebody who's believed to be a proxy of the RJD as well. Be that as it may, all through the day, you had the RJD say this is Kushasan, this is the return of Jungle Raj, and that is where the irony kicked in, because guess what? Hours after Lallan Singh was on the road for Anand Singh, Lalu Prasad, the tallest face of the RJD patriarch himself, was carrying out an extremely rare roadshow accompanied by his daughter Meesa Bharti. Do you know for whom? He was carrying out this roadshow for Ritlal Yadav, a man who, by the way, is also in jail, just like Anand Singh, a man who is also accused of murder, just like Anand Singh, and who in fact has now been shifted to high security prison. This gentleman has had a very illustrious career. So who really is Ritlal Yadav? He surrendered before Adanapur court on the 17th of April this year. He was subsequently sent to judicial custody in Beur jail. He faces charges of demanding 50 lakh rupees of extortion. He is also accused of issuing threats to a local builder, and that's not all. Like I said, he's had a star-studded career. He is accused in the murder of a BJP leader, Satyanarayan Sinha. In 2012, the Enforcement Directorate had filed a case of money laundering against them, and these are just few of the cases in his report card. So yes, a union minister and a deputy CM going out and campaigning and saying humne kamaan sambhal li hai for a man who is accused of murder, for a man who is currently in jail, is terrible optics. It sends out a message that ultimately winnability is everything. It is not really about cleaning up society or cleaning up politics, but at the same time, for the RJD to be lamenting the return of Jungle Raj, or to be saying that this is an example of Kushasan, is the biggest and the most excruciating irony ever. मैं नीतीश कुमार के कानून के राज का सम्मान और सम्मान करके आज वो यहाँ नहीं है। हमने आज से उनका चुनाव का कमान संभाल लिया। लेकिन एक बात बता देते हैं, ये पूरी घटना जो है, ये घटना कोई अपने आप नहीं हुआ है। यह घटना कराए जाने का षड्यंत्र रचा गया था और पुलिस जांच हो रही है। पुलिस जांच में सारा षड्यंत्र का पर्दाफाश पुलिस विभाग करेगी। So which party should one blame? Or is everyone ultimately in the same side, on the same side? They decide who is going to be the person who will win that seat for them. And at some point, do you also question the people who are voting for candidates like this? Because political parties eventually throw the ball in the court of the voter and say, oh, these are the most popular people, the most popular candidates available here. Because I asked Lallan Singh that question, and here is what he said. ललन सिंह जी, सबसे पहले आपका यहाँ पर आना आज के दिन, इसकी क्या अहमियत है? आज का दिन हमारे लिए अहमियत कोई खास आप देख रहे हैं, लेकिन हमारे लिए चूंकि मेरा ये संसदीय क्षेत्र भी है और हमको यहाँ चुनाव प्रचार में आना भी था, लेकिन आज हम आए हैं और आज ही के दिन हमको यहाँ पहले से मेरा कार्यक्रम तय था। लेकिन इस बीच में एक घटना हो गई कुछ दिन पहले टाल में, और वो घटना में हमको नहीं मालूम है, लेकिन वो घटना का कई वीडियो, घटना स्थल का कई वीडियो वायरल हुआ है और वो पब्लिक डोमेन में है।
आम लोगों की जानकारी में है। उस घटना को देखने से, कोई भी देखेगा तो उस घटना को देखने से ऐसा लगता है कि वह घटना वहाँ कराई गई और कराई गई है सुनियोजित ढंग से, षड्यंत्र के तहत। कहीं न कहीं उसका तार जरूर जोड़ा हुआ है। किसके साथ? क्योंकि हम किसके साथ, हमें ये पुलिस का काम है, लेकिन क्योंकि उस घटना स्थल पर जो रोड़ा बरामद किया गया पत्थर, वो पत्थर रेलवे ट्रैक पर रहता है। रेलवे ट्रैक पर रहने वाला पत्थर टाल में क्या कर रहा था, कौन ले गया था उसको, किसने उपयोग किया उसका? आप इसको घटना क्यों कह रहे हैं, हत्या क्यों नहीं? हत्या तो घटना हुआ तो घटना का ही परिणाम है कि किसी की हत्या हुई, उस घटना का परिणाम है। लेकिन घटना क्यों हुआ? घटना नहीं होना था, घटना होने का कोई गुंजाइश नहीं था। पत्थर कहां से आया? वो रेलवे ट्रैक का पत्थर टाल में कहां से आया? तो कोई ना कोई तो लाया उसको। और जब घटना हुई तो कार्रवाई भी हुई पुलिस की, और पुलिस ने कार्रवाई किया, इसलिए कि नीतीश कुमार जी का जो शासन है वो कानून का राज है। और अनंत सिंह जिनको उम्मीदवार थे हम लोग के, एनडीए के, जनता दल यू के उम्मीदवार थे, उनका नाम एफआईआर में आया। उन्होंने कानून का सम्मान किया। जांच होते हुए भी आप जब उसको षड्यंत्र करार दे देते हैं तो एक तरीके से आप उनको निर्दोष ही बता देते हैं ना? हम नहीं कह रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं, हमारा परसेप्शन है। आपका भी परसेप्शन हो सकता है। आपका परसेप्शन है कि वो निर्दोष है। हमारा परसेप्शन ये है कि वो घटना सुनियोजित थी, वो घटना कराया गया। ये पत्थर कहां से आया, ये जांच का विषय है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। और हम समझते हैं कि पूरी निष्पक्षता से अवश्य पुलिस इसकी जांच करेगी। सर, राजनीतिक तौर पे क्या एक ये डर है कि अब यादव भूमिहार वोट सूरजभान सिंह के पीछे एकजुट हो जाएगा? ये आपका परसेप्शन है। आप जरा मुकामा घूम के देख लीजिए। आप अपना नैरेटिव मेरे मुंह में डाल रहे हैं। आपका क्या नैरेटिव? आपके नैरेटिव पर हम नहीं चल रहे हैं। आज की तारीख में मैं ये मानता हूं कि अनंत सिंह 14 को परिणाम आएगा, और आप आज लिख के रख लीजिए, 14 के बाद हमसे बात करिएगा। जितना वोट से आज तक अनंत सिंह इस विधानसभा क्षेत्र में जीतते रहे हैं, उससे ज्यादा वोट से इस बार चुनाव जीतेंगे। And that brings us to the big questions on which the buck stops here. किसका बाहुबली, किसका कुशासन? Joining us on the show today, we have Waris Pathan, spokesperson of the AIMIM, Satish K. Singh, senior journalist, Syed Lareb Akram, who's a spokesperson for the RJD, Sameer Chaugankar, senior journalist, and Manish Bariyar, spokesperson of the BJP. I'll start the discussion with you, Syed Lareb Akram. Akram साहब, आप पूरे दिन जंगल राज करते रहे और आज पटना शहर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर दानापुर में आप एक ऐसे आदमी के लिए, आपकी पार्टी लालू जी एक ऐसे आदमी के लिए वोट मांग रहे थे जो कि खुद जेल में है, जिसके ऊपर एक्सटॉर्शन का आरोप लगा है, जिसके ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस है, जिसके ऊपर मर्डर का आरोप लगा हुआ है। रीतलाल यादव क्या कुशासन नहीं है? अगर अनंत सिंह कुशासन जरूर है, पर रीतलाल यादव भी कुशासन है ना? बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। देखिए, इसमें इलेक्शन कमीशन में एक प्रोविज़न है कि कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो जब तक रीतलाल यादव अभी इलेक्शन कमीशन और उनको संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है चुनाव लड़ने का, तो चुनाव लड़ रहे हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं। रही बात बहुत सारे केसेस तो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत भी किए गए हैं। जो दूसरे आप केसेस की बात कर रही हैं तो वो अगर न्यायालय में, अरे सर, अगर पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत होता तो 2012 में उनके ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस हुआ था, तब तो कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी ना। 2012 में जब उनको ईडी का केस लगा, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का केस लगा, तब किसकी सरकार थी? तब तो केंद्र में और ईडी को सपोजिटली कंट्रोल करने वाली यूपीए की सरकार थी। नहीं, ये तो आदमी के ऊपर ईडी का 6 महीने से लगातार ईडी और एक्सटॉर्शन का भी केस है। अभी 6 महीने से आप, जी बिल्कुल सुन लें, अभी 6 महीने से जो लगातार उनके जो जिस तरह से पीछे एजेंसीज लगाई गई हैं, वो सारे आप लोगों ने देखे। जिस तरह से मैसिव क्रैकडाउन किया गया था, वैसा क्रैकडाउन इन्होंने एनडीए के नेता पर किया क्या? अनंत सिंह के ऊपर किया क्या? मर्डर
करके पूरे बिहार को, अभी पूरा देश देख रहा है, इलेक्शन हो रहा है, लोकतंत्र की जननी कही जाती है, क्या तस्वीर पेश की है बिहार के की एनडीए ने पूरे देश भर में? सवाल तो वो है, सवाल ये नहीं, हमारे उम्मीदवार हैं जेल में, है जेल से चुनाव लड़ने का अधिकार है, और अगर उनको कोर्ट उनको यदि अलाउ करता है केस लड़ने का तो लड़ रहे हैं, लेकिन जो घटना घट रही है, जिस तरह से लगातार उसको रीतलाल के ऊपर में या किसी और के ऊपर में अगर हम पासिंग गेम करें तो उससे मुझे नहीं लगता कि एनडीए के लोगों को कुछ फायदा होगा। पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कुछ भी नहीं बची है। 40 गाड़ी से एनडीए का काफिला चल रहा है, 8 गाड़ी 10 गाड़ी की पासिंग होती है, उम्मीदवार के खेमे में 4 गुना 5 गुना गाड़ियां ज्यादा चल रही हैं, कॉन्वॉय लेके चल रहे, हथियारों से लैस होकर चल रहे हैं। शायद आपने मेरी बात सुनी नहीं, गोलीबारी हो रही है सर, आपने शायद मेरी बात सुनी नहीं। रीतलाल ललन सिंह ने ये बयान दिया। शायद आपने मेरी बात सुनी नहीं। रीतलाल यादव के ऊपर खैर जो केस बना था ईडी का, वो 2014 के बाद नहीं, 2012 का केस बना था, कोई हाल फिलहाल का वो केस नहीं है। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल वेंडेटा देन यू हैव टू आस्क द कांग्रेस एंड यूपीए गवर्नमेंट। मैडम आप मनीष बरियार किसी भी बात को, Manish Bariar, that still doesn't take away from the fact that you can't have a union minister and the deputy CM of Bihar. Look at the optics. Look at the optics, Manish Bariar. The Bihar police arrest Anand Singh, and then you have the deputy chief minister of Bihar campaigning for Anand Singh. What is the message that you are sending, sir? The cabinet minister is campaigning today. जो आपने जो सवाल किया वहां पर, लेकिन वहां पर जो है वो चार्जेस हैं, आई थिंक वन शुड अप्रिशिएट दैट द चार्जेस हैव गॉन ऑन अनंत सिंह and he was within within a day he was in jail, right? But then those charges have not been proved. That is one, and most importantly that is the basic difference between the NDA government headed by Shri Nitish Kumar and the government which was headed by Lalu Prasad Yadav, right? The then chief minister used to go to the Mr. Bariar, the question is not about who is arrested who is arrested when. That is not my question. My question is very simple. Lalu Prasad is campaigning for Rithlal and a union minister and your deputy CM are campaigning for Anand Singh. What was the need, sir? What was the need for the deputy CM to be there? It is very clear. What will the Bihar police investigate if your deputy CM is there campaigning for him? Right, there is a basic difference between what has happened in this case. This is an allegation, which is a false allegation that has gone on him. He has every right to defend that. But having said that, I am not surprised what Laluji did and what he did for that. No, you should not be surprised. I am very surprised at both of the leaders. How can you possibly defend? Again, I am saying, Rithlal Yadav has also not been convicted of extortion. Yet, he is also in jail and Anand Singh is also in jail. Let me have Mr. Akram respond to you for a second. I am going across to Waris Pathan. नहीं, कौन से दोनों केसेस में? इलेक्शन चल रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, हम अपने प्रत्याशी के लिए तो हम चुनाव के दौरान उम्मीदवार के लिए जाकर मांगेंगे वोट, जनता के बीच जाएंगे। केंद्रीय मंत्री यूनियन मिनिस्टर ललन सिंह वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हर व्यक्ति मुकामा का आनंद सिंह है और हर को आनंद सिंह बन के चुनाव लड़ना है। किसको थ्रेटन कर रहे हैं? वो क्या धमकी दी जा रही है? मतदाताओं को दी जा रही है कि विपक्ष को दी जा रही है कि हर कोई आनंद सिंह है? और ये कहना कि आनंद सिंह शासन का सम्मान करते हुए वो अरेस्ट हो गए, मतलब वो अरेस्टिंग भी उनके लिए एक मास्टर स्ट्रोक दिखाना चाहते हैं ये लोग। ये बिहार के तस्वीर को दिखाने के लिए, गुंडा राज को दिखाने के लिए, is a bigger Bahubali over here. No, nobody is Bahubali in democracy. There is no Bahubali or nothing like that. That these people are gundas, literally gundas. They are gunda like anything. Murder, extortion, kidnapping, all kind of cases booked on Anand Singh. Despite all, they made a special provision from the assembly और उसको बाहर निकालते लोकसभा इलेक्शन के लिए। और लोकसभा इलेक्शन में क्या किया उसने? नजर आ रही हैं आपको? एक बार भी रीतलाल यादव की बात नहीं याद आ रही? अरे बाकी सब आप छोड़िए, पप्पू यादव के खिलाफ कितने केसेस है, कभी कभी वो भी सोच लिया कीजिए। एक सेकंड, लेट वारिस पठान कम इन। वारिस पठान, who is the bigger Bahubali here? Well, Padmaja, nothing has changed. Earlier it was Lalu's tenure, it was Jungle Raj 1.
Now during Nitish's NDS tenure, what is Jungle Raj to what has changed? What we saw last month was in 7 days, 54 murders took place. Now within 6 days, 12 to 15 murders have taken place. What has changed? This is not Jungle Raj. Now, there is a competition going on between them. Who's the biggest Bahubali? But who's the ultimate sufferer? Is the people of Bihar. What are they getting? Is the rule of law. For the constitution, what is happening? Criminals are roaming free. And that is why we have come here to ensure that justice is done. And see, the frustration can very well be seen on Tejasvi and Lalu's face. Now, yesterday, Tejasvi, while giving an interview to a political news reporter, said that Owaisi Saab, she asked him, why did you not take Owaisi in your alliance? So what reply he gave was very, very shocking to everybody. Everybody's criticizing that he called Owaisi an extremist. Now, I challenge Tejasvi to write the meaning of extremism or to write the word extremist with his own hands. He won't be able to even write it. Calling a member of parliament, 5-term member of parliament, a Sansad Ratan, a barrister, a member of parliament even today who was sent by the government of the day to the world, before the world to expose Pakistan, went there, exposed Pakistan. He's in India campaigning for his party. He's a national leader, and you call him such kind of a. This is not an insult to Asad Owaisi only. This is an insult to the entire Muslim community, to the man, to the woman, the man with a skull cap and a beard on him. This is a direct insult by Tejasvi to the Muslim community at large, and the community will never forgive him. No, never forgive. Today he's showing that he loves the community so much. Earlier, when during the I Love Muhammad issue was taken place, when we were saying that, the person is not a Muslim unless and until he says the word I love Muhammad sallallahu alaihi wasallam or recites the kalma. When a reporter asked him, what do you have to say about that? He said, no, I am busy. I am busy with the Bihar election. So what he will do with the community at large if he does not even respect our prophet, what he will do with the community at large? That is why we say that the people of Bihar will definitely give a reply. अकरम साहब खुद के गुंडे आप रेन इन कर नहीं रहे हैं, औरों को एक्सट्रीमिस्ट बुला रहे हैं। नहीं, देखिए, अच्छा, आपका सवाल MIM के नेता के बारे में है शायद, am I right? जी, yes, that is correct. नहीं, देखिए, उनकी पूरी जो पॉलिटिकल पोजीशन है, जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, वो एक्सट्रीम लाइन लेते हैं ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। और हिंदुस्तान में और पूरे बिहार में मैं विशेषकर कहूँ तो बिहार का मुसलमान और हिंदुस्तान का मुसलमान कभी भी मुसलमान लीडरशिप के चक्कर में नहीं पड़ा कि मुझे मुसलमान लीडर चाहिए। मुझे भरोसा है इस देश के नॉन मुस्लिम लीडर्स के ऊपर में। मुझे कोई मुसलमानों की अलग से पार्टी नहीं चाहिए, अलग सा कुछ नहीं चाहिए। ये जो लोग भी राग अलापते हैं उनकी पॉलिटिक्स है, वो अपना करें, उनको मुबारक है। हम सेकुलरिज्म में, हम संविधान में, हम देश के एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं। हम किसी भी तरह की तोड़ने वाली खुद क्रिमिनल्स को टिकट दे रहे हैं सर, और आप वारिस पठान के बॉस को एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। अरे सुनिए, तेजस्वी यादव ने अल्फाज एक्सट्रीमिस्ट बोल के पूरे मुसलमानों का अपमान किया है, और आप माफी मांगते हैं या नहीं? तेजस्वी को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? चलाते रहे शुरू से आखिर तक। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये कौन से लोग हैं ये जो बीच में बताते हैं कि हिंदुस्तान में कितना मिनट चाहिए और क्या चाहिए? क्या ये हमारे सेकुलरिज्म के लिए खतरा नहीं है? नहीं, क्या सेकुलरिज्म के लिए खतरा है? स्वीकार कर ले समाज के लिए, just give me an opportunity to make my point. This is not the way I won't be able to. अगर हम बजरंग दल और RSS का विरोध करते हैं, अगर हम इस तरह के तंजीमों का विरोध करते हैं, तो निश्चित तौर पर मतलब ये है किसी भी जाति और समाज और मुसलमान हो या हिंदू हो या किसी भी धर्म वारिस पठान बुनियाद पर अगर कोई भी इस तरह की बात को फैलाएगा, आपको मुसलमानों के वोट चाहिए, आपको मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देना है। चुनाव के पहले आप मुसलमानों को इफ्तार पार्टी में जाओगे, खजूर खाओगे, टोपी पिना दोगे। चुनाव के वक्त आप उनको चौपर में बिठाओगे, दाढ़ी वाले टोपी वाले को, और चुनाव के वक्त उसको लात मार के आप फेंक दोगे। तो आपने जो बात बोला है, बताओ आप ये मानते हो कि एक मुसलमान जो भारत देश का पक्का सच्चा नागरिक है, जो एक प्राउड इंडियन मुस्लिम है, क्या वो एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है? क्या है वो? आप क्या बोलना चाहते हो? आपको उसका मतलब भी मालूम है, मीनिंग भी मालूम है? आपने पूरे देश के मुसलमानों को गाली दी है। एक दाढ़ी वाले, टोपी वाले को आपने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके
क्या साबित करना चाह? अरे हमने तो आपके साथ बड़ा दिल रख के आया था कि आइए सांसद सेक्टर वोटों का विभाजन ना हो, बीजेपी एनडीए को हराया जाए, इसलिए हम साथ में आए थे। अब आपने छेड़ा है तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। पहले तो हम किसी को छेड़ते नहीं पद्मजा, अब छेड़ा है तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। और देश के काफी सेक्युलर नेताओं ने इस बात पे खंडन जताया है कि तेजस्वी ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए ओवैसी साहब के प्रति वो निहायत ही शर्मनाक है, वो बेबुनियाद है। इस तरह के अल्फाज नहीं यूज करते। बिल्कुल सही बात है। एक नौवीं फेल से और उम्मीद क्या करेंगे आप? एक नौवीं फेल रील बनाने वाला जो पटना की मरीन ड्राइव की सड़कों पे नाच गाना करके रील बनाता है, वो इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेगा ना एक बैरिस्टर की ऊपर भी, जो 5 टर्म का सांसद है, सांसद रतन के लिए इस तरह के अल्फाज। शर्म ना आनी चाहिए तेजस्वी को, शर्म आनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए उसे ओवैसी से और पूरे देश के नागरिकों से। सतीश जी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि ये तो राजद से सवाल पूछा ही जाएगा ना कि भाई आप दुनिया भर के लोगों को टिकट दे देते हैं, उनके लिए वोट मांग लेते हैं, और जस्ट बिकॉज असदुद्दीन ओवैसी अब अलग से लड़ रहे हैं आपने उनको एक्सट्रीमिस्ट बोल दिया। क्यों? रीतलाल यादव एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, पप्पू यादव जिनके खिलाफ केसेस रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है। सतीश जी, see, there is it's a fight between shameless and a shameless. It's not about the fact that RJD doesn't have a jungle Raj past. Yes, they have. But they have a tent on their face and they take it very hard somehow defending it that there was no jungle Raj. But the onus is on Nitish, onus is on the NDA. You see, the other day, the cabinet minister, central cabinet minister, was mounted on a prime minister's vehicle in Patna for a road show. The other day, he takes the command for Anand Singh's victory in Mokama. He has taken the command and he's saying that everybody is Anand Singh. So it's a fight between shameless and shameless. Coming back to your question, you see, there is a wide feeling among the RJD cadre or say MGB cadre that Owaisi ji comes here with a purpose. I think you can find good words for Owaisi ji, MIM from the BJP perhaps. So there is this acrimony going on. Yes, I do agree that Tejasvi should have avoided this extremist word, but this is a like no holds bar fight there. And it's a criminal versus criminal. If you compile the number of cases among all the candidates in 243 constituencies, it will exceed 2,000 cutting across all the parties. जी, पर कोई फिर कोई कुशासन नहीं बोल सकता ना। माय पॉइंट इज कि थ्रू द डे टुडे समीर जी, आरजेडी तो इस तरीके से बोलते रहे, एंड मैं दोबारा कह रही हूँ कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है दैट लल्लन सिंह गोज एंड कैंपेन्स फॉर अनंत सिंह व्हाइल ही इज इन जेल, और इवन सम्राट चौधरी गोज एंड कैंपेन्स। माय पॉइंट इज कि राष्ट्रीय जनता दल को इस दिन तो कुशासन और जंगल राज की बात नहीं करनी चाहिए जब खुद लालू जी जा करके रीतलाल यादव के लिए वोट मांगते हैं। समीर जी। बिल्कुल पद्मजा जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देखिए लालू प्रसाद यादव खुद अभी हेल्थ के कारणों से बेल पर हैं और वो चुनाव प्रचार करने जाते हैं और रैली करते हैं रीतलाल यादव के लिए, जो दानापुर से एक बाहुबली चुनाव लड़ रहा है। वो अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार करने नहीं जाते, वो पार्टी के अन्य नेताओं के लिए नहीं जाते, लेकिन सिर्फ एक रैली करते हैं वो, और वो भी एक रीतलाल यादव जैसे बाहुबली के लिए करते हैं। और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से आप देखिए, जिस तरीके से अनंत सिंह को टिकट दिया जेडीयू ने, जिस तरीके से वो मर्डर केस में गिरफ्तार हो गए, उसके बाद आज लल्लन सिंह उनके लिए रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी, वो रोड शो के अंदर जा रहे हैं। अब अनंत सिंह और रीतलाल यादव के बारे में बहुत ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे लग रहा है कि इस तरीके से बाहुबली को टिकट देकर कोई भी पार्टी हो, वो बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहती है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार तो सुशासन के नाम पर ही सत्ता में आए थे लालू प्रसाद के जंगल राज के खिलाफ। ठीक है, आरजेडी में तो अपराधियों की भरमार रही है, जनता को, बिहार की जनता को लालू प्रसाद से बहुत उम्मीद नहीं है, वो तो अपराधियों को टिकट देंगे क्योंकि उनकी राजनीति वैसी रही है। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, उन्हें इससे बचना चाहिए था कि अनंत सिंह को आप टिकट दे रहे हो। और अनंत सिंह तो वो व्यक्ति है जो आरजेडी में भी रहा है, वो निर्दलीय भी चुनाव जीता है, वो जेडीयू में भी रहा है, उसको किसी पार्टी की किसी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बाहुबली किसी के नहीं होते, वो सत्ता के साथ होते, जिसके पास सत्ता है वो उसके पास चले जाते हैं
मुझे लग रहा है लल्लन सिंह ने बहुत गलत किया, और लल्लन सिंह इसलिए गए कि मुंगेर से जब लल्लन सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो यही अनंत कुमार ने पूरी ताकत उनको चुनाव जितवाने में लगाई थी। अनंत सिंह ने दिन रात उनके लिए प्रचार किया था। तो आज लल्लन सिंह वो कर्जा उतारने गए थे कि अनंत सिंह ने मुंगेर से लोकसभा चुनाव में लल्लन सिंह के लिए प्रचार किया, तो आज लल्लन सिंह की मजबूरी थी कि वो अनंत सिंह के लिए प्रचार करे, और वो उन्हें कह रहे हैं अनंत सिंह बाबू वो निर्दोष है, वो बाहर निकलेंगे। अरे वो राजा हरिश्चंद्र है अनंत सिंह के बारे में बिहार जानता है कि उनका राजनीतिक इतिहास देखिए 2 दशकों से कैसा रहा है, और मुझे लगता है ये बहुत शर्मिंदगी की बात है उन ऐसे लोगों को टिकट देना, उनके लिए चुनाव प्रचार करना। Satish Singh. Yeah, the onus is on Nitish. He has been known as a clean man, clean politician. Till now there is no individual allegation against him. नहीं, but सतीश जी, ओनस शुड बी ऑन आरजेडी आल्सो ना। Of कि course, या तो yes. फिर वो बोल दे कि one हम minute, बाहुबलियों को one देंगे, minute. हम क्रिमिनल्स की पार्टी हैं। ओनस इज ऑन बोथ पार्टीज। No, वो but the onus is और ये more. भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि यही अनंत सिंह 2020 में तो आरजेडी के टिकट पे ही जीते थे ना। 2022 में उनकी पत्नी भी आरजेडी के टिकट पे ही जीती थी। ये मुझे आज महागठबंधन ऐसे बोल रहा है एज इफ वो पता नहीं सारे मैग्सेसे अवार्ड विनर्स को टिकट्स दे रहे हैं, वो भी तो इसी अनंत सिंह को जिता रहे थे। मैंने आपसे कहा कि ये सेमलेस बेशर्म बनाम बेशरम है। आप ये समझिए, देखिए मुद्दा ये है कि नीतीश जी जाने जाते थे बड़े क्लीन आदमी के रूप में। एनडीए ने कहती है कि ये जंगल राज वाले हैं, तो आप अगर जब कहते हो जंगल राज, तो आपका जंगल राज का नैरेटिव वेयर इज इट, वेयर डज इट स्टैंड? यू आर अ पार्ट ऑफ दैट सेम जंगल, you are a part. Can I come in? You have to differentiate yourself from being you have Now, again, as if you are clean. You're not Padmaja ji, clean. this is not to just defend, but everybody is forgetting that who is in front of Anand Singh. He is Mr. Suraj Bhan Singh's wife, and Suraj Bhan Singh is known to people. But you look at who is in front of Ritlal Yadav, former Union Minister Ram Kripal Yadav. Right? Again, this is not to defend what is happening, because I cannot defend the indefensible. But then I have heard Nitish ji saying कि कभी-कभी लोहा के सामने लोहा को डालना होता है. Again, this is his understanding of what happened out there. This is very unfortunate, whatever has happened. But then मिस्टर बरियार, लोहा के सामने लोहा को डालेंगे तो बीच दोनों लोहों के बीच में तो आदमी पिस जाएगा ना। आपके लिए तो बहुत आसान है बोलना कि लोहे के सामने लोहे के डालो, और इसके बीच में पिसेगा कौन? This is not my party. I'm not putting a brief. But then perspective is also very important. That what are we talking about on that particular seat, and what we are talking about when it सर, talks चीफ about मिनिस्टर तो Ritlal आप Yadav. ही के हैं ना, जेडीयू के। दिस इज नॉट माय पार्टी। आर यू सीरियसली सेइंग दैट यू हैड नो से इन जेडीयू टिकट्स? इफ यू वांटेड obviously- टू गिव अ क्लीन फेस टू योर एंटायर गठबंधन, यू रियली सेइंग दैट यू कुड नॉट हैव टेकन द लाइक्स ऑफ अनंत सिंह आउट। My Anant Singh, by point the is way, is different. only one. You have given, or rather the JDU has given tickets to more Bahubalis also, and two even My point BJP is has given, as different. far as I can remember. Padmaja ji, So, my Mr. point Bariar, is I different. really think. My point is, Yes. What is your point? CM's office supporting organized crime and someone, an individual person contesting election, these are different things. When we talk about Jungle Raj, we are talking about organized CM-backed crime, corruption, as well as murder and kidnapping. Very big difference. And who was Taslimuddin, by the way? Right? Who was Shahabuddin, by the way? And this time also, I'm sorry, just 5 seconds. This time also, out of 143 candidates from RJD, 98 have serious criminal charges and 78 have murder charges. I think that should also come out to the public, and they should know what RJD is all about. Obviously, all the focus is going on Anand Singh and to Ritlal You know, Yadav. Akram But Sahab- beyond that, what is the Charles Charitra Chehra of this party? Okay. जी No, there is Chal Charitra Chehra of your Gadbandhan also, your alliance also, and I can name the number of other people, barring Anand Singh, who are also fielded by your alliance. But I want to ask you, Akram Saab, I want to show you a classic picture. In October, when Ritlal Yadav had to file his nomination, he came in a prison van. I mean, again, I am talking about the optics of it all. The man comes in a prison van to file his nomination. Yesterday, he sought the permission of court to get bail to go out and campaign. He was denied that permission. Such is the gravity of his crime. And still you are sitting here and saying, bhai, NDA is the one who should be explaining why they are campaigning for Anant. It's a battle of shameless versus shameless, as Satish K. Singh is saying.
नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, परमिशन डिनाइड हुआ, आपने जो कहा वो इलेक्शन कैंपेन के लिए। विधानसभा से कोई प्रोविज़न करके हमने गुंडे को तो बाहर नहीं निकाला है। ये जो एनडीए के लोगों ने किया है, आनंद मोहन को बाहर निकालने का काम किया। अमरेंद्र पांडे बाहुबली नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, अपराधी नहीं है, धूमल सिंह अपराधी नहीं है। ये सब सूफी संत की जमात है क्या जदयू और भाजपा में? और हमें नॉमिनेशन फाइल करने का और नॉमिनेशन फाइल करने के लिए प्रिजन वैन में आने की अनुमति हमें न्यायालय से मिली है, कोर्ट से मिली है। हम तो जुडिशियल ऑर्डर का पालन कर रहे हैं। वो जिस कह देंगे कि आप इलेक्शन लड़ने से अरे सर, अनुमति तो अनंत सिंह को भी मिली हुई है चुनाव लड़ने के लिए। अनंत सिंह कौन से कन्विक्ट हो गए हैं? अनंत सिंह को गोली मारने की नहीं चुनाव लड़ने के लिए क्या-क्या चार्जेस है रीतलाल यादव के खिलाफ? 40 गाड़ियों के काफिले को लेकर एक सेकंड नहीं मिली है मैडम। अनंत सिंह को 40 गाड़ियों की अनुमति नहीं मिली है। अनंत सिंह को हथियार बंद होकर चलने की अनुमति नहीं मिली है। तो क्या रीतलाल यादव को 50 लाख की फिरौती मांगने की परमिशन मिली हुई है उनको? रीतलाल यादव को 50 लाख की फिरौती मारने की परमिशन मांगने की परमिशन मिली हुई है? उनको क्या एक बीजेपी के नेता के मर्डर की परमिशन मिली हुई है? देखिए अरे ये बात तो अनंत सिंह पे भी अप्लाई होती है ना, वो कौन से कन्विक्ट हो गए हैं सर? ये माननीय न्यायालय पे डिपेंड करेगा। नहीं, अभी इलेक्शन में जो नंगा नाच किया जा रहा है, ये बात अनंत सिंह पे भी उतनी अप्लाई होती है। तिल कर तोड़ा जा रहा है एनडीए के द्वारा। नहीं, हमारे उम्मीदवार गोलीबारी नहीं कर रहे। हमारे उम्मीदवार 40 गाड़ियों का काफिला लेकर नहीं चल रहे मैडम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समीर जी बताइए। चलिए अब हम इतने फाइन डिस्टिंक्शन पे आ गए हैं तिल का ताड़ से कि देखिए वहां पे गोलीबारी हो रही है। नहीं, तिल का ताड़ नहीं है, क्योंकि रीतलाल यादव के ऊपर भी बीजेपी के नेता की हत्या के आरोप लगे हुए हैं। उनके ऊपर अकेला ये एक्सटॉर्शन का नहीं है। केंद्रीय मंत्री हिस्ट्री शीटर है वो। शाम का 2020 में भी जेल से चुनाव लड़ा था उन्होंने। देखिए, तो ऐसा नहीं है कि कोई आप महात्मा गांधी हैं। आपने इस आरोपी को 2020 में टिकट दिया, 2025 में टिकट दिया और खुद लालू जी जाके वोट मांग रहे हैं। यहाँ तो लल्लन सिंह मांग रहे हैं, वहां तो लालू जी वोट मांग रहे हैं। एब्सोल्युटली नहीं, हम अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने भी नहीं जाएंगे। हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है कि आप चाहते हैं कि हम वोट नहीं मांगे? मेरे किसी प्रत्याशी ने नॉमिनेशन फाइल करके अपराध नहीं किया है। अपराधी जो अपराध कर रहे हैं, जो घूम रहे हैं, आरोप लगता है मैडम। आरोप मामला न्यायालय में है। माननीय न्यायालय से जो निर्णय होगा वो सराखों पे होगा। न्यायालय ने आदेश किया कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, अनुमति दी। हम आज ये तेजस्वी यादव का बयान आया था। There is nothing like that, nothing grey shade here. इनके यहाँ प्रॉब्लम है, ये जवाब दें। जवाब इनको देना पड़ेगा। 20 साल में आपने क्या किया? दर्जन भर हत्याएं हो गई हैं। देखिए पद्मजा, अभी कल ही तेजस्वी यादव का बयान आया था कि 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, 16 नवंबर को मैं सीएम पद की शपथ लूंगा और 26 जनवरी तक सारे अपराधी जेल के अंदर होंगे। एक भी अपराधी बिहार के अंदर नहीं मिलेगा। बिहार अपराध मुक्त हो जाएगा। और आज ही उनके पिताजी रीतलाल यादव के लिए रैली कर रहे हैं, मतलब रोड शो कर रहे हैं। रैली भी नहीं की, रोड शो उन्होंने किया है। रोड शो तब किया जाता है कि जो बहुत आदमी करीबी होता है। और लालू प्रसाद यादव ने एक भी व्यक्ति के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया, लेकिन रीतलाल यादव के लिए चुनाव प्रचार करने निकल गए। पूरा परिवार, राबड़ी देवी घर से रीतलाल यादव के लिए प्लान बना रही कि कैसे वो चुनाव वहाँ से जीतेंगे। जो लालू परिवार का इतना करीबी है, और तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार को अपराध मुक्त करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आज लालू प्रसाद यादव ने बता दिया है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार के अंदर रीतलाल यादव जैसे नेताओं की फिर वापसी होगी और फिर वही अपराध और वही गुंडागर्दी देखने को मिलेगी। और जो अमित शाह जी ने कहा था कि 3 नए मंत्रालय खुलेंगे, अपहरण का, फिरौती का और हत्या का जो मंत्रालय खोला जाएगा, वही स्थिति बिहार में लौटेगी अगर आरजेडी की सरकार लौट कर आती है। तो नहीं, तो अगर एनडीए की सरकार लौट करके आती है तो अनंत सिंह कौन सा मंत्रालय खोलेंगे? समीर जी, सवाल तो ये भी पूछेगा ना आदमी। निश्चित रूप से, बिल्कुल। आज बिहार का चुनाव, and which is why I asked the simple question. This is terrible optics, and let me just point out to our viewers, and which is so unfortunate. Let me play out for you. Suraj Bhan Singh, whose wife is up against Anant Singh. I actually spoke to him today and I asked him, you keep talking about Jungle Raj. He is now of course in the RJD, he's supporting the RJD. Here is what he said. Didn't
answer one question directly of the over 25 cases and heinous cases that he has against him. Listen. Suraj Bhan Singh is a very popular name because it is his wife who is fighting on an RJD ticket here. Suraj Bhan ji, जो अभी पूरा जो लड़ाई चल रही है, बट आखिरी कुछ 2-3 दिन बचे हुए हैं, अब खुद जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मोर्चे पर निकल पड़े हैं और वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ, जो दुलार चंद यादव की हत्या थी, वो एक षड्यंत्र के तहत की गई है। कौन कर रहा है ये षड्यंत्र? देखिए, इस पर क्या करें, भारत सरकार के मंत्री हैं, षड्यंत्र करने का तो काम मुख्य रूप से सरकार का काम है। क्या सच्चाई है, बच्चे खुचे चुनाव आयोग इस पर एक्शन लिए हुए हैं, सब चीज़ सच्चाई जनता के बीच में। आप तो उस गांव से उस जाके हुए परिवार से पूछिए कि इसमें क्या सच्चाई है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। क्या दुलार चंद यादव को आप जानते थे? 90 के दशक से उस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं तो कौन नहीं जानेगा। यहाँ के हर एक गाँव, हर एक जाति धर्म के लोग जानते हैं। क्या आपके लिए वो काम कर रहे थे, अभी आपके लिए प्रचार कर रहे थे? नहीं, मेरे लिए तो प्रचार नहीं कर रहे थे, वे तो जनसुराज के लिए जी थे, गला चिर के कर रहे थे और उन्हीं के उम्मीदवार के साथ टहल रहे थे। और इनके मती करने का, दो आमने सामने मती करने का, हम तो जिससे के अलग है, हमको तो कुछ लेना देना नहीं था इससे चीज से। क्योंकि उनके पोते तो अलग कहानी सुना रहे हैं। उनके पोते, दुलार चंद यादव के पोते कह रहे हैं कि वो तो राजद के लिए प्रचार कर रहे थे। ये चीज़ तो वहाँ का पब्लिक से जाकर पूछ लीजिए, उस इलाका के लोग ज़्यादा बेटर से बता आपको जिससे किसकी जवाब देंगे, हम इसमें क्या जवाब दे सकते हैं। आपको क्या लगता है किसने हत्या की है? ये हत्या करने का देखने का काम सरकार का है। जो करता है, कोई भी हत्या जहाँ होती है वहाँ FIR होता है, वहाँ के लोग जानते हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि इनका नाम कौन दिया, क्या हुआ, इससे भी कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि लल्लन सिंह से जब हमने आज बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये तो क्योंकि कानून का राज है, इसलिए आज अनंत सिंह को जदयू के प्रत्याशी होते हुए उन्होंने जेल में डाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन पे आरोप सिद्ध हो जाते हैं या फिर वो कसूरवार है। ये सब लोग जानते हैं कि किस कारण गए हैं, ये सब लोग जानते हैं। पर उल्टा वो तो कह रहे हैं कि देखिए, आप भी जेल गए हैं, दुलार चंद यादव भी जेल गए हैं, हत्या के आरोपी तो तीनों हैं। सब जेल गए हैं, आए हैं। जेल तो गांधी जी नहीं गए हैं, जेल कौन नहीं गया है, एक से एक लोग जेल गए। किस कारण, जिससे कि क्या देश के लिए महत्वपूर्ण चीज में जेल गए हैं, क्या ये देश की पहली ऐसी घटना हुई है? जेल किस कारण गए हैं, क्या वजह हो गया, इस पे आप फोकस कीजिए। Well, you heard the man over there. He ducked all of those questions. The point is very simple. In elections, winnability may be an important factor, but that does not mean that those in government can shy away from their responsibility simply by saying that charges aren't proven. What is goose, what is sauce for the goose is sauce for the gander, and that applies equally to the RJD as well. If you're talking about Jungle Raj, just look around you and see who Laluji was campaigning for. I'm going to end it at that. Thanks very much, all gentlemen, for having joined me.